Okay, I'm very much to wait. Just in case. Question. Assalamualaikum. Students, do you hear me? Yes, ma'am. Thank you. So today we are going to continue our discussion regarding mediators of information. So the presentation of today is mediators of information 2. कल हमने क्या क्या पढ़ा था mediators of information में? हम सेल डिराइव्ड पढ़े थे और प्रोटीन डिराइव्ड। Plasma derived और protein Plasma derived derived. ठीक है ना? प्लाज्मा डिराइव्ड। और हमने सेल डिराइव्ड में क्या कहा था? कौन कौन से हमने पढ़े? Intracellular histamine and and serotonin. de novo synthesis. हाँ, ये डिनोवो भी हो सकती है और स्टिमुलेट भी हो सकते हैं, प्री फॉर्म भी पढ़ा हो सकता है। और कौन से हमने सेल डिराइव्ड मीडिएटर पढ़ा था? Vasoactive amines पढ़े थे, हिस्टामिन और सेरोटोनिन Very और good, एरिकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट हमने सेल डिराइव्ड में एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स पढ़े थे और उसमें हमने दो कौन से मेन क्लासेस पढ़ी थी? Prostaglandins और ल्यूकोट्राइन्स। Leukotrienes. Leukotrienes. So today we are going to start talking about cytokines. ठीक है जी? Cytokines are a large group of proteins, peptides, or glycoproteins that are secreted by specific cells of immune system. They are a category of signaling molecules that mediate and regulate. असल चीज थी regulation. वो अभी हम आगे जाके जब डिस्कस करेंगे एक और चीज COVID-19 से रिलेटेड, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि regulation of immune response or inflammation is so important, right? Cytokines are a category of signaling molecules that mediate and regulate immunity, inflammation, and hematopoiesis. They're produced mainly by activated lymphocytes, macrophages, and dendritic cells, but also endothelial, epithelial cells, and some connective tissue cells. This is a table from your book, and in this table, principal cytokines and their actions in inflammation are highlighted. So, just to show you that in acute inflammation, tumor necrosis factor, interleukin 1, interleukin 6, chemokines, and interleukin 17 are predominantly involved. While in chronic inflammation, interleukin 12, interferon gamma, and interleukin 17 are involved. So let's discuss some of these cytokines in detail. Tumor necrosis factor, interleukin 1, and interleukin 17 serve critical roles in leukocyte recruitment by promoting adhesion of leukocytes on endothelium and their migration through blood vessels. Okay? Interleukin 6 is involved in local and systemic reactions of inflammation. They are produced mainly by activated macrophages and dendritic cells. Tumor necrosis factor is also produced by T lymphocytes and mast cells, and interleukin 1 is produced by some epithelial cells as well. कल किसने बात की थी कि मास्ट सेल्स की लोकेशन क्या होती है? फातिमा? मरवा ने। मरवा, आपने जाके देखा कि मास्ट सेल्स की कहाँ पे होती है लोकेशन? Tissues में around the blood vessels. Around the blood vessel. बल्कि जो भी हमारी एनाटॉमिकल बाउंड्रीज है ना, म्यूकोजा के पीछे, म्यूकोजा के अंदर नहीं होगा, बल्कि कनेक्टिव टिश्यू में ये टिश्यू रेजिडेंट होते हैं मास्ट सेल्स। और पहले ये सोचा जाता था कि शायद जो हमारे बेसोफिल्स हैं
वो जैसे मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज का रिलेशनशिप है ना, कि मोनोसाइट जब तक सर्कुलेशन में रहेंगे दे आर मोनोसाइट्स, बट वंस दे रीच द टिश्यूज दे आर नोन एज मैक्रोफेजेस। तो पहले ये बिलीव करते थे कि जो बेसोफिल्स है, सर्कुलेटिंग बेसोफिल्स, वही जब टिश्यूज में जाते हैं तो वो मास्ट सेल्स बन जाते हैं। लेकिन अब दिस इज प्रूवन कि इन दोनों का जो प्रिकर्सर है वही डिफरेंट है। सो बेसोफिल्स आर नॉट द सेम सेल्स एज मास्ट सेल्स। ठीक है जी, बस ये टिश्यू रेजिडेंट होते हैं, इतना क्लियर है हमारे जहन में। ठीक है, और ये इननेटिव जो बाय बर्थ हमारी इम्यूनिटी है, मास्ट सेल्स आर पार्ट ऑफ दैट इम्यूनिटी। दे आर स्टिमुलेटेड बाय माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, dead cells, immune complexes, foreign bodies, physical injury, and a variety of other inflammatory stimuli. Immune complexes का क्या मतलब? What is meant by immune complexes? फातिमा, साद क्या कहना चाह रहा है? साद, are you present? Yes, ma'am. Perfect. हाँ जी, immune complexes का क्या मतलब? मैम जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स Yes, Antigen immune antibody complexes, complex. बिल्कुल antigen antibody complexes। ठीक है जी। अच्छा, what are the actions of tumor necrosis factor interleukin-1? They act on endothelial cells and activate them. Activation से क्या होगा? Increased expression of endothelial adhesion molecules, E-selectin, P-selectin, and ligands for leukocyte integration. जो हमने सेकेंड लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में जब हम सेलुलर इवेंट्स पढ़ रहे थे, तो हमने सेलेक्टिव्स की और इंटेग्रिन्स की बात की कि सेलेक्टिव्स जो होते हैं, there are 3 types: E-selectin, P-selectin, and फातिमा, नुसरत, हरीम। एक होती है P-selectin, एक होती है E-selectin, और कौन सी होती है? मैम इंटेग्रिन्स थी और इंटेग्रिन्स तो थी WBCs के ऊपर, लेकिन हमने 3 तरह की सेलेक्टिव्स पढ़ी थी ना। एल एल सेलेक्टिव जो कि ल्यूकोसाइट के ऊपर होती है। ठीक है, एल सेलेक्टिव। सो एंडोथेलियम के ऊपर कौन कौन सी आएंगी? ई सेलेक्टिन एंड पी सेलेक्टिन, उनका एक्सप्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। और लाइगैंड्स फॉर ल्यूकोसाइट, क्योंकि हमने कहा था कि जो एडिशन मॉलिक्यूल है साथ में उसका लाइगैंड है, उन दोनों का बॉन्ड बनेगा तो एडिशन होगी ना। ठीक है, ई सेलेक्टिन इज एक्सप्रेस्ड एंड पी सेलेक्टिन इज एक्सप्रेस्ड ऑन द एंडोथेलियल सेल्स। लाइगैंड्स फॉर ल्यूकोसाइट इंटेग्रिन्स, क्योंकि ल्यूकोसाइट के ऊपर है इंटेग्रिन, राइट? This increased production of various mediators, including other cytokines and chemokines, growth factors and icosanoids. ये भी जो tumor necrosis factor है और interleukin-1 है, they are acting on the endothelial cells to produce various other mediators, including cytokines, chemokines, growth factors, and icosanoids. And also there is increased procoagulant activity of endothelium. इसको हम बहुत डिटेल में जब हमने हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं तो इंशाल्लाह इसको हम उस वक्त टच करेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम मेंशन कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ एंडोथेलियल एक्टिवेशन देयर इज इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ एंडोथेलियल adhesion molecules, the release of cytokines and growth factors, chemokines, and there is increased procoagulant activity of endothelium. Now the activation of leukocytes, ये तो पहले था tumor necrosis factor का और interleukin-1 का effect on the endothelial cells. Now they affect on leukocytes and other cells. They actually augment responses of neutrophils to other stimuli such as bacteria and toxins. उनको sensitize कर देते हैं, ठीक है? And they stimulate the microbicidal activity of macrophages. Interleukin-1 activates fibroblasts to synthesize collagen and stimulates proliferation of synovial and other mesenchymal cells. ठीक है जी, ये 3 चीजें हैं कि जो इनकी एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स हो रही है। ह्यूमन नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन-1 के पहले हमने पढ़े इफेक्ट्स ऑन मिनाहिल। यस मैम। हमने अभी देखा कि ह्यूमन नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन-1 ये जब एक्ट करते हैं एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर तो इनके क्या इफेक्ट्स थे? मैम एडिशन, रिमॉडलिंग, ग्रोथ। ठीक है, एंडोथेलियल एडिशन मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज एक्सप्रेशन, increased production of mediators and increased procoagulant activity. WBCs के ऊपर इनका क्या effect है कि they augment responses of neutrophils to other stimuli such as bacteria and toxins. They stimulate the microbicidal activity of macrophages, and interleukin-1 activates fibroblasts to synthesize collagen and stimulates proliferation of synovial and other mesenchymal cells. They also take part in systemic acute phase response. Interleukin-1 and TNF
as well as interleukin-6, induce the systemic acute phase responses associated with infection or injury. अब ये एक लफ्ज हम यूज करें, acute phase response. Have you heard it before? Nuzhat? Isha? What is acute phase response? यस मैम। मैम ये होता है कि जब आप कोई फीवर हो या मतलब आपका जो सबसे पहले जब कोई आप इन्फ्लेमेशन या कुछ तरह का हो तो सबसे पहले जो साइंस होते हैं उनको कहते हैं एक्यूट फेज रिएक्शन, जिसमें ज्यादातर आपको फीवर हो जाता है, फीवर में होता है, उसमें होता है एक्यूट फेज। एक्यूट फेज फीवर हो जाता है। एक्चुअली एक बॉडी का रिस्पॉन्स है प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, ठीक है। इसमें some of the proteins are secreted at an increased rate and some proteins are reduced. अब बेसिकली ये आपको प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स बॉडी के लिए है। इसमें अब आप इसको थोड़ा सा ये देखिए कि कुछ प्रोटीन्स वो लिवर से ज्यादा सिक्रीट होना चाहिए। अब देखिए हम जब कहते हैं कि सीबीसी देखी हमने, उसमें ईएसआर देख रहे होते हैं और हम कहते हैं कि हाँ इसका तो ईएसआर बहुत ज्यादा रेज्ड है तो इसको तो अंडरलाइंग इन्फेक्शन चल रहा है, होता है या नहीं? इसी तरह हम जो पेशेंट्स हैं कोविड के, हम उनकी मॉनिटरिंग उनकी सीआरपी से कर रहे हैं। व्हाई इज इट सो? मरियम, वही बात कि सम ऑफ द प्रोटीन्स आर मैम हाँ जी मैम हम लोग उनकी वो चेक करते हैं ना जिसमें प्रोटीन की ज्यादा हो, मतलब ज्यादातर इनके जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसमें ज्यादातर एलएफटी प्रोटीन का भी इंक्रीज हो या एंजाइम्स एक्टिविटी, मतलब लिवर को इन्फेक्शन आपका हो तो वो आपके रेज होते हैं levels उनके। proteins are increased, some of the proteins are increased in case of acute phase response, ठीक है ना। acute phase response उसको हम कहते हैं। उसमें जो most likely जो most commonly involved है वो आपकी fibrinogen है, CRP है, इसके अलावा ferritin है, even von Willebrand factor is increased, factor 8 is an acute phase reactant, so ये proteins increase हो जाती है। अच्छा, इसका protective response क्या है कि जब आप बहुत ज्यादा for example ferritin increase हुई है तो वो bind कर लेगी iron, और आयरन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरिया और माइक्रोब्स टू प्रोलिफरेट, तो वो ना सिक्वेस्टर कर देती है। और इसी तरह आपने देखा जो हेप्सिडिन है वो भी इंक्रीज हो जाती है। हेप्सिडिन भी एक प्रोटीन है जो कि इंक्रीज हो जाती है एक्यूट फेज रिस्पांस, और उसमें ये होता है कि हेप्सिडिन इज अ नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ आयरन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, गट की मेम्ब्रेन और जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं जहाँ पे फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर हुआ होता है, वहां से वो आयरन को निकलने नहीं देती। तो एक रिस्पॉन्स होता है कि जो बैक्टीरिया को चाहिए प्रोलिफरेट करने के लिए हम उसको सिक्वेस्टर कर लेंगे और हम उसको रिलीज नहीं करेंगे। समझ आई ना कि उनको एक तरह से स्टाफ करना है माइक्रोब्स को। दूसरी चीज ये कि जो फाइब्रोनोजन इंक्रीज हो जाती है तो ये बहुत एक क्या कहना चाहिए कि इसका साइज काफी बड़ा होता है फाइब्रोनोजन का, तो वो थिकंड हो जाता है प्लाज्मा जो है ना, ठीक है। तो उस वजह से वो भी होता है कि इसको भी ये भी उनको लिमिट करने के लिए माइक्रोब्स को ये बॉडी की एक अटेम्प्ट होती है। और जब हम ईएसआर की बात करते हैं तो ईएसआर बेसिकली डिटरमिन करें, आप लोगों ने फिजियो में ये प्रैक्टिकल भी किया होगा और आप लोगों को पता होगा इस बात का कि ये बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है ईएसआर, एक आपके रेड सेल्स के ऊपर और एक आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स के ऊपर। तो जो रेड सेल्स हैं नॉर्मली दे डोंट स्टिक टू ईच अदर, दे रिमेन 25 nanometers apart because of the like charges on them, all the red cells. But when the proteins are involved, plasma proteins are increased, they neutralize that charge that exists on the surface of the red cells and promotes their settling down. आपने देखा ना ट्यूब में हम ब्लड लेके रख देते हैं फिर हम देखते हैं 1 घंटे के बाद कि उसमें से कितने रेड सेल सेटल हुए, तो उसमें जब प्रोटीन ज्यादा होंगी तो उनका सेटलिंग का रेट जो है ना वो बढ़ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ESR इज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो इस ESR इज एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स व्हेन दे आर इंक्रीज्ड और ESR इज इंक्रीज्ड, ठीक है। इसीलिए जब हम ESR को देखते हो किसी का 68 है कुछ है, हाँ इसको तो चल रही है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी में सस्पेक्ट करें कि उसको ट्यूबरक्लोसिस चल रहा है, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन, आप उसका ESR कराते हो और अगर वो 90s और 80s में है तो आपके एक पॉजिटिव आ जाता है ज़हन में कि हाँ कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इज गोइंग ऑन, ठीक है ना। तो दैट इज एक्यूट फेज रिस्पांस। और इसी तरह जो हम कोविड में CRP करा रहे हैं, जो फाइब्रोनोजन है ना उसका ये होता है कि वो थोड़ा उसकी लाइफ ज्यादा होती है तो उसके जो अप्स एंड डाउन्स है वो इतनी रैपिडली हम नहीं देख सकते, बट CRP के अप्स एंड डाउन्स हम रैपिडली फॉलो कर सकते हैं। दैट इज व्हाई कोविड-19 के पेशेंट्स में हम उसको मॉनिटर कर रहे थे बस CRP actually shows us the degree of inflammation that is going on.
यू गॉट माय पॉइंट कि हम जो एक्यूट फेज रिस्पॉन्स की बात करते हैं कि डिफरेंट प्रोटीन्स आर इंक्रीज्ड, हम उनको मॉनिटर करते हैं ताकि हमें अंदाजा, अब डायरेक्टली तो कोई ऐसा आला या कोई ऐसा पैमाना नहीं कि हम कहें कि हाँ इसमें इतनी इन्फ्लेमेशन हो रही है जी, इतने डिजिट्स हैं और ये वो, इस तरह का कुछ नहीं। हम तो सिर्फ एक इनडायरेक्ट मेजर ऑफ इन्फ्लेमेशन को असेस करते हैं बाय एक्यूट फेज। मैम उसमें ल्यूकोसाइट्स भी तो कम हो जाते हैं। वो भी हम आगे जाके एक तस्वीर में बताती हूँ मैं आपको कि ल्यूकोसाइट्स कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वो ज्यादा होते हैं, वो मैं भी आपको बताती हूँ। ठीक है, अब एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम तस्वीर पे जाते हैं। Human necrosis factor regulates energy balance by promoting lipid and protein mobilization and by suppressing appetite. ठीक है, sustained production of TNF contributes to cachexia, that is due to anorexia and weight loss. ठीक है ना, आपने emaciated, किसी को chronic कोई चीज चल रही हो, बीमारी चल रही हो, तो वो emaciated हो जाते हैं। Have you seen such patients ever? Minahil, अफार, कोई देखा ऐसा पेशेंट से क्रॉनिक कोई डिजीज चल रही है, आप देखो डिबिलिटेटेड सा होता है, बहुत वीकनेस उसको, और बहुत देखा है कभी? नो। अल्लाह करे कभी ना देखो, अल्लाह करे किसी को ऐसी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या ऐसी प्रोसेसेस ना हो कि आप कभी वो पेशेंट देखो, लेकिन इस तरह के पेशेंट्स होते हैं। ठीक है ना, सो हमने यहाँ देखा कि सिस्टेमिक एक्यूट फेज रिस्पॉन्स में भी साइटोकाइंस का डेफिनेट रोल है, और ये कि एनर्जी बैलेंस को भी वो रेगुलेट करता है by promoting lipid and protein mobilization, and it also contributes to cachexia that is seen with chronic inflammatory condition. इस तस्वीर की बात कर रहे थे, ठीक है जी। अब इस पे कंसंट्रेट करते हैं। देखो मेजर रोल्स ऑफ इंटरल्यूकिन इन इन्फ्लेमेशन, एक्सट्रीम लेफ्ट पे अगर हम देखें तो लोकल इन्फ्लेमेशन बताएंगे, वही चीजें जो हमने पहले डिस्कस की थी वो अब हम इसमें देख लेते हैं कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन 1 they act on the endothelial cells and cause increased expression of adhesion molecules. Do you see my cursor? यस मैम। Now it has disappeared. ये बड़ा automatic किस्म का cursor है, कभी आ जाता है कभी गायब जाता है। So TNF and interleukin 1 act on the endothelial cells to increase the expression of adhesion molecules. They also, tumor necrosis factor also causes endothelial cell contraction and increased vascular permeability. Next, they act on the endothelial cells to increase the production of other cytokines and chemokines. This is the action of TNF and IL-1 on the endothelial cells. On leukocytes, TNF and interleukin-1 act on the neutrophils to क्या किया था हमने न्यूट्रोफिल्स में, क्या था मैम? साइटोकाइन की सिक्रीशन, उसको जो उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड करना, तो उनकी सेंसिटिविटी को वो इंक्रीज कर देता है। ठीक है, and also increases the phagocytic ability of the macrophages. ठीक है जी। अब यहाँ पे एक हेडिंग आ रही है सेटम सिस्टेमिक प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर IL-1 IL-6 they act on the hypothalamus and they cause fever. तो ये मुझे बताओ कि अगर किसी को फीवर हो रहा है तो ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट कैसे है, क्योंकि फीवर तो इज नॉट अ गुड थिंग, तो हाउ इज इट प्रोटेक्ट? मरवा, Any idea? Minahil, do you agree with me कि देखो हम कह रहे हैं कि ये सिस्टेमिक प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स है, जबकि ये तो कॉज कर रहे हैं फीवर, तो व्हाई इज फीवर प्रोटेक्टिव? मैम बॉडी टेम्परेचर को मैम इम्यून रिएक्शंस मैम- होते हैं, उसके बाद पायरोजेंस इंक्रीज हो जाते हैं इम्यून रिएक्शन के रिजल्ट में, तो उस वजह से बुखार। इम्यून रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, हमने ये देखा है कि जो हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन्स थी वो एक्चुअली फीवर और पेन कॉज कर रही, ठीक है, वो ठीक है कि इम्यून रिएक्शन की वजह से हो रहा है, लेकिन व्हाई इज फीवर प्रोटेक्टिव? ये आपकी बुक में फीवर को प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स में क्यों डाला गया? चौधरी उस्मान राशिद, डू यू हियर मी? हाँ हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? सिम्टम जिससे पता चलता है कि इन्फ्लेमेशन हुई है बॉडी में। एग्जैक्टली, जबरदस्त मिनाहिल, जबरदस्त, दिस इज द पॉइंट। देखो अगर मेरे अंदर कोई इन्फ्लेमेशन चल रही, इन्फेक्शन चल, फॉर एग्जांपल मुझे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, मुझे कैसे पता चलेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स में से मुझे फीवर होगा और उससे बॉडी में तोड़ पड़ोगे, मुझे लगा देयर इज समथिंग रॉन्ग,
और फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, फिर इन्वेस्टिगेशंस होगी और फिर पता चलेगा कि क्या, isn't it? So this is a blessing in disguise. Fever is a blessing in disguise. हमें लगता है कि ओहो जी बुखार हो गया, मैं तो बीमार हो गया, but this is a good sign, it's a protective sign. एटलीस्ट वो आपको अलार्म तो करे, बजाय इसके कि अंदर ही अंदर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाए कि वो बाद में सेप्सिस कॉज कर दे और आप उसको ट्रीट ही ना कर सको. So fever is one of the protective effects. Liver. These cytokines cause liver to release proteins, जिसको हम कहते हैं acute phase proteins. और उसमें हमने देखा फाइब्रिनोजेन है, CRP है, फेरिटिन है, और जैसे हमने देखा रिबोनुक्लिक फैक्टर भी वही है. TNF, interleukin 1 and interleukin 6, they act on the bone marrow to increase leukocyte production. अभी किसने बात की थी कि leukocytes कम हो जाते हैं? मैंने मिनाहिल ने. यहाँ वो कह रहे हैं कि हाँ. leukocytes increase हो जाते हैं. जब आपकी बुक में लिखा हुआ है systemic effects of inflammation, तो उसमें leukocytosis लिखा हुआ है. Sometimes, अच्छा नॉर्मल कितना होता है WBCs का काउंट? नॉर्मल WBC का काउंट बॉडी में कितना होता है? आपने फिजियो में ब्लड पढ़ा है बच्चों? मरवा, हरीम, today you are not participating. Otherwise तो आप 4 to 11 तक होता है. 4 to 11 into 10 per 3 per microliters ये WBC का काउंट है, और 7 के अराउंड होता है जो मीन होता है. तो आप देखें कि इन्फेक्शंस में समटाइम्स मतलब इतना ज्यादा WBC काउंट इंक्रीज होता है कि वो ल्यूकीमिया का शक पड़ना चाहते हैं कि इतना ज्यादा काउंट है, कहीं ल्यूकीमिया तो नहीं, और उसको ल्यूकीमॉइड रिएक्शन कहा जाता है. ठीक है, हमने कई दफा आईसीयू से 63, 68, 55 इतना काउंट भी देखा हुआ है. तो दिस leukocytosis is actually due to tumor necrosis factor IL-6 and IL-1, their effect on the bone marrow. और अगर आप लोग जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि कभी आप लोगों को भी रोटेशन कराएं लैब्स में, आप आके देखेंगे कि जो आईसीयू से मोस्ट ऑफ द केसेस आते हैं ना, वो ल्यूकोसाइटोसिस है, मतलब उनका WBC काउंट इज इंक्रीज्ड, दैट बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ साइटोकाइन्स ऑन द बोन मैरो. बट यस मिनाहिल, यू वर राइट, समटाइम्स इतनी ओवरवेलमिंग सेप्सिस होती है कि WBC काउंट इज रिड्यूस्ड. ये भी हमने देखा हुआ है. ठीक है, बट यूजुअली ल्यूकोसाइट काउंट इज इंक्रीज्ड, in some cases WBC count is reduced due to marrow suppression caused by the cytokine. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सारा? Yes, ma'am. नेक्स्ट, सिस्टेमिक Yes, ma'am. पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स भी आते हैं. ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हार्ट पे जाके लो आउटपुट करा, ये दीज आर पैथोलॉजिकल. ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स है जो हमने देखे. अब पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स में हार्ट के ऊपर उसका बुरा इफेक्ट है, एंडोथेलियल सेल्स और ब्लड वेसल के ऊपर, बिकॉज इट प्रेडिस्पोजेस थ्रोम्बोसिस. वो क्यों? कि हमने कहा था इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ एडिशन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होता है और इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी भी होती है. जो भी आईसीयू में पेशेंट्स आते हैं ना, आईसीयू में पेशेंट्स आते हैं, उनको लो डोज एंटीकोगुलेशन दी जाती है, बिकॉज पता होता है कि आईसीयू में अगर किसी पेशेंट ने लैंड किया, इसका मतलब है उसके अंदर अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन जो है ठीक ठाक चल, अदरवाइज तो वार्ड में होता, और अगर बिल्कुल ही ना होती तो वो पेशेंट ही ना होता. ठीक है ना. तो थ्रोम्बोसिस इज a complication of inflammation. Then tumor necrosis factor acts on the skeletal muscle to cause insulin resistance. These are some pathological effects. So I repeat that the effects of cytokines and local inflammation include their effect on the endothelial cells, on the WBCs, while they have some protective effects, including fever and the release of acute phase proteins from the liver and increased WBC count that is seen in infection and inflammation. Pathological effects include effects on the heart, reduced output, and thrombosis and insulin resistance in the skeletal muscles. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई confusion? Anything? आगे चलें जी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, chemokines. Chemokines is a family of small proteins that act primarily as chemoattractants for specific types of leukocytes, and about 40 different chemokines and 20 different receptors for chemokines have been identified. So इसके लिए chemokines basically chemoattractants are for specific types of leukocytes. Now, this is
something that I wanted to discuss, cytokine storm in COVID-19. कल मिनाहिल आपने कहा था, किसने कहा था कि cytokine storm होता है? जाजिबा, इकरा, फातिमा ने कहा था। फातिमा ने कहा था। नो मैम, So- एमन ने कहा था, मैंने नहीं कहा। एमन, अरे देखो, जिसने भी कहा था तो अच्छी बात है ना, इट मींस यू आर जिसको कहते हैं कि यू आर वेल ओरिएंटेड इन टाइम एंड स्पेस। आपको पता है कि इर्द-गिर्द क्या हो रहा है, कोविड है और वो उसकी पैथोलॉजी क्या है, ठीक है ना। इट्स अ न्यू थिंग, कोविड-19 इन्फेक्शन इज अ न्यू थिंग फॉर द वर्ल्ड। और अभी तो उसका जैसे उसके ऊपर लिटरेचर पब्लिश हो के आ रहा है तो हमें कुछ कुछ समझ आना शुरू हुई है, वरना तो इनिशियली तो पिछले साल जब स्टार्ट हुआ था तो किसी को पता ही नहीं था कि इसको मैनेज किस तरह करना है, किसी ने कुछ का ये दे दे वो दे दे। लेकिन अब जो है थोड़ी सी एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 हो रही है। तो उसमें जो चीज है ना वो ये है कि कोविड-19 इन्फेक्शन इज क्या है? कोविड-19 बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल है? वायरल। It's a viral illness. It is accompanied by an aggressive inflammatory response with the release of large amount of pro-inflammatory cytokines in an event known as cytokine storm. अब ये cytokine storm, इससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगाएं। Storm क्या होता है? इसके साथ सब कुछ बहा के ले जाता है, यही होता है ना। The host immune response to the SARS-CoV-2 virus is hyperactive, resulting in an excessive inflammatory reaction. Several studies analyzing cytokine profiles from COVID-19 patients suggested that the cytokine storm correlated directly with the lung injury, multi-organ failure, and unfavorable prognosis. और नीचे मैंने उस आर्टिकल का रेफरेंस नहीं, वो एंड पे दिया हुआ है जिस आर्टिकल में से मैंने ये पढ़ा था, ठीक है। The cytokine storm results from a sudden acute increase in circulating levels of different pro-inflammatory cytokines, including interleukin-6, IL-1, TNF-alpha, and interferon. This increase in cytokines results in influx of various immune cells, such as macrophages, neutrophils, and T cells from the circulation into the site of infection, with destructive effects on human tissue resulting from destabilization of endothelial cell-to-cell interactions, damage of vascular barrier, capillary damage, diffuse alveolar damage, multi-organ failure, and ultimately death. हमें ये पता होना चाहिए। अब हमने ये बात की ना कि नॉर्मली इन्फ्लेमेशन इज अ हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे वो रेगुलेशन वगैरह कुछ नहीं, हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स आ जाए। और एक और बात जो मैं आप लोगों को जरूर शेयर करना चाहती हूँ कि आपको पता है पिछले साल जब ये सारा स्टार्ट हुआ तो सबने कहा कि जी जो कन्वेलेसेंट प्लाज्मा है, कन्वेलेसेंट प्लाज्मा ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कोविड हुआ तो मेरे अंदर ऑब्वियसली इम्यूनिटी पैदा हुई, मेरी आईजी पहले IgM बनेगी और फिर मेरी IgG बन जाएगी। जब मैं रिकवर करूंगी तो वो मेरी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो डेवलप हो चुकी होगी। तो उसमें इस पैसिव इम्यूनिटी, ये पैसिव, अगर मेरा वो प्लाज्मा किसी को लगेगा तो मुझे तो हुई डेवलप एक्टिव इम्यूनिटी, बट मेरा प्लाज्मा लेके अगर किसी को दे दिया जाए तो उसके अंदर पैसिव इम्यूनिटी आ जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है ना? यस मैम। हाँ, तो दिस वाज द बेसिस ऑफ कन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कि आप ऐसे डोनर्स को सेलेक्ट करें कि जिनको पिछले 2 महीने में कोविड हुआ, वो रिकवर हुआ है और उनका एंटीबॉडी का टाइटर कराएं। अगर इस लेवल से ज्यादा है तो आप उनका प्लाज्मा लेके तो सिक पेशेंट्स में ट्रांसफ्यूज कर दें। इसके ऊपर बड़ी डिबेट चली, बड़ा सब कुछ के नहीं इसकी इंडिकेशन नहीं है वो। अच्छा, फिर ये हुआ कि कुछ लोगों ने ना हुकूमत ने तो ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उसने तो कोई पहले इजाजत ही नहीं दी कि नहीं ये प्लाज्मा नहीं लगाना। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ जहाँ ट्रायल्स हो रहे हैं, ट्रायल सेटिंग्स, उन सेटिंग्स में ये हम देंगे। और उसमें भी पेशेंट सिलेक्शन के भी क्राइटेरिया बता दिए और डोनर सिलेक्शन के भी क्राइटेरिया बता दिए। और उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि कोविड प्लाज्मा का कोई रोल नहीं है इन सवेयर डिजीज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम प्रैक्टिस होते हुए देख रहे हैं, यहाँ मींस ये नहीं है, सेटबाक नहीं है, मैं जनरल एक बात कर रही हूँ कि जब पेशेंट इतना सिक हो जाता है कि उसके बचने की उम्मीद नहीं होती, डॉक्टर्स को नजर आ रहा था, तो उनके अटेंडेंट्स को थोड़ा सा वो करने के लिए कहते हैं कोविड प्लाज्मा ले आए, कोविड प्लाज्मा ले आए। वो अटेंडेंट्स बेचारे कोविड प्लाज्मा की तलाश में किसी जिसको हुआ हो कोविड, उसको तलाश कर रहे होते हैं कि वो रिकवर करके आओ, उसका एंटीबॉडी टाइटर कराएं। अब देखो ये बात क्लियर है कि जो डेथ या मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा है, दिस इज नॉट ड्यू टू वायरस इटसेल्फ, इट इज ड्यू टू द साइटोकाइन्स व्हिच आर रिलीज्ड। अगर खुदा ना खास्ता मुझे सवेयर कोविड हो गया है, मेरे अंदर साइटोकाइन का स्टॉर्म बन चुका और वो मेरे ऑर्गन फेल होना शुरू, उसको अगर मुझे आप एंटीबॉडीज दे भी देंगे तो एंटीबॉडीज का क्या रोल है?
अगर मेरी एंडोथेलियल सेल टू सेल इंटरेक्शन खराब हो गई है, मेरा वास्कुलर बैरियर खराब हो गया है, मेरी कैपिलरी डीप डैमेज हो गया है, एल्वियोलर वास्कुलर डैमेज हो गया मुझे डिफ्यूज, तो वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी? नथिंग, नथिंग। सो इसीलिए रोल है टोसिलिजुमैब, एक रिकम्बिनेंट ह्यूमनाइज्ड IL-6 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है व्हिच इज डायरेक्टेड अगेंस्ट क्या उसको कहते हैं कि इसको बनाया गया मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को अगेंस्ट इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर, और ये उसको जाके बाइंड करती है और इंटरल्यूकिन 6 को रोकती है कि वो साइटोकाइन स्टॉर्म ही ना हो सके। ठीक है, इसको भी आप कब देंगे? जब पेशेंट को फीवर हुआ है, को 15 दिन हो जाएंगे और उसका सब कुछ कंट्रोल है, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 50 है, या आप शुरू में देंगे? शुरू में देंगे। शुरू में देंगे, बिकॉज अभी हम उसको रोकना चाह रहे हैं अभी, ताकि साइटोकाइन स्टॉर्म ही डेवलप ना। और कोविड प्लाज्मा भी, इफ यू वांट टू गिव इट टू द पेशेंट एट ऑल, कोविड प्लाज्मा उसको इनिशियल स्टेजेस ऑफ डिजीज पे दें, ताकि अभी वो वायरस गया है, एंटीबॉडी उसको न्यूट्रलाइज कर दे, आगे बात हुई ना। ठीक है, सो दिस थिंग यू मस्ट कीप इन योर माइंड। और जिसने भी कल बताया था, मुझे फिर सॉरी नाम भूल गया है, जिस बच्ची ने कल साइटोकाइन स्टॉर्म की बात की थी, वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे खुशी हुई है कि आप लोगों को इस बात का नो-हाउ है कि जो कोविड में जो कुछ हो रहा है उसकी पैथोफिजियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ये तो पता नहीं कब तक चलेगा। और अब जाहिर है कि आप लोगों ने ही इसको इंशाल्लाह पेशेंट्स को भी देखना है और डील करना है, तो यू हैव टू हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन केस ऑफ कोविड-19 infection. ठीक है, so this was something about the cytokines. Next and a very important topic is complement system. बच्चों यहाँ तक समझ आ गई है? Shall we move forward? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Complement system is a collection of plasma proteins that function mainly in host defense against microbes and in pathologic inflammatory reactions. The system consists of more than 20 proteins, some of which are numbered C1 through C9. Okay? In the process of complement activation, several cleavage products of complement proteins are elaborated that cause increased vascular permeability, chemotaxis, and oxidation. So, is a collection of plasma proteins. ठीक है, और उसमें एक more than 20 proteins are known, और उसमें C1 through C9 हमने कुछ को नंबर दे दिया है, और several इसमें ये होता है कि these proteins circulate in plasma in inactive form। और आगे हम देखेंगे कैसे उसकी एक्टिवेशन होगी। तो क्या होता है कि जब एक्टिवेशन होती है तो एक एक्टिवेटेड फैक्टर इट एक्ट्स लाइक एन एंजाइम टू एक्टिवेट द अदर फैक्टर। ठीक है, तो इस तरह एक कैस्केड चलती है एक्टिवेशन की। In the process of complement activation, several cleavage products of complement proteins are elaborated that cause increased vascular permeability, chemotaxis, and oxidation. Complement proteins are present in inactive forms in the plasma, and many of them are activated to become proteolytic enzymes that degrade other complement proteins. वो मैंने आपको भी बताया। The critical step in complement activation is the proteolysis of third and most abundant component C3. ठीक है, सबसे important है C3 की activation। कैसे हो? Cleavage of C3 can occur by one of the three pathways. Number one, the classical pathway, which is triggered by binding of C1 to antibody, IgM or IgG, that has combined with antibody. The classical pathway, it involves the activation of C3 by binding of C1 to antibody, IgM or IgG. The alternative pathway, which can be triggered by microbial surface molecules, endotoxin or lipopolysaccharides or other substances in the absence of antibody. Classical pathway में antibody mediated activation है, alternate में microbial products activate करें. The lectin pathway, in which the plasma mannose binding lectin binds to carbohydrates or microbes and directly activates C1. अगर हम थोड़ा सा आप रिकॉल करें तो जिस वक्त हम recognition of microbes की बात कर रहे थे phagocytosis से पहले, तो हमने mannose receptors की बात की. ये mannose binding lectins are those that bind terminal mannose or fucose residues in glycolipids or glycoproteins of the microbial cell wall. They are not present. जो terminal fucose या mannose residues है, वो mammalian cell की wall में नहीं है. तो इस तरह वो detect करते हैं microbes को और directly activate. अच्छा, पहला pathway है जो classical pathway antibody mediated. दूसरा alternative pathway triggered by microbial surface molecules. और तीसरा lectin pathway in which the plasma mannose binding lectin binds to carbohydrates or microbes and directly activates C1. Is it clear? Complement की activation कितने pathway से हो रही है? Ma'am, 3.
Number 1 classical pathway, antibody mediated. Number 2 alternative pathway, microbial products है. Number 3 lectin. Functions क्या हैं? हमने कहा है ना कि host defense का part है. Functions क्या है complement system के? Number 1 in inflammation, C5a, C3a, and to a lesser extent C4a. They stimulate histamine release. और histamine क्या करती है? Vasodilation. Vasodilation and anything else? Vascular permeability increase हो जाती है. Vascular permeability increase हो जाती है. ठीक है, दो चीजें होती हैं, vasodilation and increase vascular permeability. और C5a और C3a को एनाफाइलोटॉक्सिन्स भी कहते हैं, बिकॉज ये रिएक्शन इसी तरह कॉज करते हैं जैसे एनाफाइलैक्सिस में मासल्स प्रोडक्ट्स जो एनाफाइलैक्सिस कॉज करती हैं, उसी तरह का रिएक्शन C5a और C3a करते हैं बिकॉज दे स्टिमुलेट रिलीज ऑफ हिस्टामिन. C5a is also a chemotactic agent for neutrophils, monocytes, eosinophils, and basophils. C5a activates the lipoxygenase pathway of arachidonic acid metabolism in neutrophils and monocytes, causing further release of inflammatory material. ठीक है, इन्फ्लेमेशन में क्या 3 रोल है? नंबर 1 एनाफाइलोटॉक्सिन्स, C5a, C3a हिस्टामिन रिलीज कर रहे हैं. नंबर 2 C5a कीमोटैक्टिक है. नंबर 3 C5a एक्टिवेट करता है लिपोक्सिजेनेज पाथवे और फर्दर मीडिएटर्स को रिलीज कराता है. बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कंप्लीमेंट का है, ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस. C3b and its degraded part, inactive C3b, when fixed to a microbial cell wall, act as opsonins and promote phagocytosis by neutrophils and macrophages. Opsonins क्या है? Opsonins मैम ये प्रोटीन्स होती हैं. हाँ प्रोटीन्स हैं. क्या करेंगे ये? मैम कैप्सूल. इनके हाँ, when they bind to the microbes, they facilitate their engulfment, their phagocytosis. अब वो C3b है और ये IgG है. ठीक है, IgG ये जब बाइंड करती है माइक्रोबियल सेल वॉल को तो वो फैसिलिटेट करती है उसकी फेगोसाइटोसिस को. ठीक है जी. और तीसरा रोल है सेल लाइसिस. जब ये हमारा कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है तो जो C1 to C9 उसके कंपोनेंट्स हैं एक्टिवेट होते हैं तो कुछ फ्रेगमेंटेड प्रोडक्ट्स निकल रही हैं जिनके अपने अपने रोल है. जैसे हमने C5a, C3a की बात की या C3b की बात की. एंड में बनता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स. तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो है ना वो डिपॉजिट होता है ऑन द सेल्स and makes these cells permeable to water and ions and results in osmotic lysis of the cell. हमें समझ ही आ रही कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो नाम बताया वो ये कि कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिवेटेड कंप्लीमेंट कंपोनेंट्स और वो अटैच करेगा टू द मेम्ब्रेन और उनकी ऑस्मोटिक लाइसिस कराएगा बिकॉज दीज सेल्स बिकम परमिएबल टू वाटर एंड आयंस और ऑस्मोटिक लाइसिस ऑफ द सेल्स होती है. ठीक है, नाउ कंसंट्रेट ऑन दिस फिगर. ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट the 3 pathways of activation of complement system are shown. Alternative pathway microbial cell wall से, product से, classical pathway antibody से activate होगा, lectin pathway जो है mannose binding lectin जो है उससे activate होगा. C3 की activation हो गई. C3b जो है ना it is deposited on microbe. उसका एक proteolytic part जो है C3a that is important chemotactic था ना C3a. तो उसमें हम कह रहे हैं रिक्रूटमेंट एंड एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स और अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स बाय ल्यूकोसाइट्स. C3b acts as opsonin and promotes the phagocytosis of microbe. और जो हमारा membrane attack complex है acts or attaches to the membrane of microbe and causes lysis osmotic. यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes. Supplement system is a collection of proteins which are present in inactive form in plasma. They can be activated by 3 pathways, वो हमने डिटेक्ट कर लिया है. और उसके बाद उनके 3 रोल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्लीमेंट के. नंबर 1 उसका इन्फ्लेमेशन में रोल इंपॉर्टेंट है, रिक्रूटमेंट एंड एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स का. फिर वो कीमोटैक्टिक एजेंट्स है, हिस्टामिन रिलीज करता है और लिपोक्सिजेनेज पाथवे को एक्टिवेट करता है. दूसरा उसका रोल है ऑप्सोनाइजेशन, फेगोसाइटोसिस इंप्रूव हो गई. और तीसरा है कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो है कॉजेस लाइसिस ऑफ द माइक्रोब्स.
The activation of complement is tightly controlled by cell-associated and circulating regulatory proteins. हर सिस्टम में checks and balances है, ये नहीं है कि वो बस लगातार हुए चला जाए, ठीक है। हमने ये पहले भी देखा है कि इन्फ्लेमेशन के भी checks and balances है, और जब वो अनकंट्रोल जाती है तो वो उसका डैमेजिंग इफेक्ट होता है rather than preventive। तो अब कम्प्लीमेंट का भी यही है कि आप सोचो कि वो इन्फ्लेमेशन में भी उसका रोल है, वो फेगोसाइटोसिस भी करा रहे हैं और वो सेल लाइसिस भी करा रहा है कम्प्लीमेंट। तो इसके भी कुछ चेक्स। C1 inhibitor blocks the activation of C1, the first protein of the classical complement pathway. Inherited deficiency of this inhibitor is the cause of hereditary angioedema. ये मुझे कौन बताएगा कि क्यों hereditary angioedema हो गया अगर C1 inhibitor है? C1 inhibitor की डेफिशिएंसी है, क्योंकि C1 inhibitor का मतलब है कि वो C1 की एक्टिवेशन को रोक देगा। तो अगर वो नहीं रुका, उसका इनहिबिटर नहीं है, तो हेरेडिटरी एंजियोडीमा कैसे होगा? एनीवन? मरवा? हरीम? इकरा? एनीवन? आर यू अप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैं बोलती क्यों नहीं हूँ? C1 इनहिबिटर अगर नहीं है, एमन, चलो एमन बताएंगे, तो हेरेडिटरी एंजियोडीमा कैसे होगा? मैम क्योंकि C1 के थ्रू ही ट्रिगर्ड होता है क्लासिकल पाथवे आपका। अच्छा, हो गया क्लासिकल पाथवे। अब उसका इनहिबिटर नहीं है तो फिर अगर उसका इनहिबिटर नहीं है तो सो व्हाट, एक्टिवेट हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। यस मैम, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, वो आगे करता जाएगा, फेगोलाइसिस करता जाएगा। देखो उसने हिस्टामिन रिलीज करानी है, C3A ने, C5A ने, और हिस्टामिन की तरह उसके यही वाले तो इफेक्ट्स हैं, इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी एंड वेसोडाइलेशन, तो उसी वजह से हेरेडिटरी एंजियोडीमा हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक और लफ्ज है, डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर एंड CD59। Decay accelerating factor prevents formation of C3 convertases and CD59 inhibits formation of the membrane attack complex. अब ये दो लफ्ज हैं, एक है decay accelerating factor और एक है CD59। decay accelerating factor क्या शो करता है? किसी चीज के decay को, उसकी ब्रेकडाउन को वो एक्सेलरेट कर, वो C3 कन्वर्टेजेस क्या है जो C3 को एक्टिवेट करेंगे, उनको प्रिवेंट करता है। इसका मतलब है कि वो रोक रहा है कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन को, लिमिट कर रहा है डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर, और CD59 इनहिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये दोनों प्रोटीन्स जो है ना, डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर एंड 59 CD59, दे बाइंड टू द सेल मेम्ब्रेन्स थ्रू अ GPI एंकर, ठीक है। समटाइम्स देयर इज म्यूटेशन ऑफ द जीन्स एनकोडिंग GPI एंकर और वो एंकर नहीं रहता, तो उस पे क्या होता है कि डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर CD59 दे हैव नो एंकर टू बाइंड टू द रेड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनका इफेक्ट प्रोटेक्टिव था एंड दैट प्रोटेक्टिव इफेक्ट इज लॉस्ट इन केस ऑफ म्यूटेशन। एक चीज, एक डिजीज है पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, उसमें देयर इज म्यूटेशन ऑफ द GPI एंकर एंड decay accelerating factor CD59, they can't bind to the cells and they cannot decay, they cannot degrade the complement system, तो इस वजह से वो unchecked चलता चला जाता। मैंने एक केस देखा है पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया का, 18 years old फीमेल, और इतनी क्लासिकल उसने हिस्ट्री दी थी हमें आके। उसने कहा कि बहुत डॉक्टर्स को दिखाया है, 2 साल हो गए थे उसको शुरू हुए हुए, तो जब कभी मेरा गला जरा सा खराब होता है या मुझे बुखार होता है तो एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद मेरी आंखें पीली हो जाती हैं, मेरा यूरिन बहुत ज्यादा पीला होता है। यूरिन इतना पीला हो जाता है कि समटाइम जो अर्ली मॉर्निंग यूरिन होता है ना, दैट इज द कलर ऑफ कोका कोला, इतना डार्क होता है। और वो टिपिकली आके बताते हैं कि सर डॉक्टर साहब ऐसा उसका कलर होता है, डार्क ब्राउन की तरह होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ दिन में जो है ना वो हल्का होता चला जाता है, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग जो यूरिन है वो इस तरह का होता है। तो पैरोक्सिस्मल इंटरमिटेंट बाउट्स है, पैरोक्सिज्म्स आते हैं ऑफ हीमोग्लोबिनूरिया और जॉन्डिस, ठीक है। और पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल का मतलब है कि जब रात में हुआ और उसका यूरिन
रात में जमा हुआ उसके ब्लैडर में तो उसका कलर इतना डार्क हो गया। हीमोग्लोबिन यूरिया का मतलब है कि हीमोग्लोबिन इज रिलीज इन द यूरिन। जब हीमोग्लोबिन यूरिया हो रहा होता है ना तो दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस। और इसमें बेसिकली इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस हो रही होती है कि IgM है, कंप्लीमेंट मीडिएटेड इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस हो रही होती है, तो इसीलिए हीमोग्लोबिन यूरिया होता है। और रात में जो ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता है वो दैट गेट्स वेरी डार्क, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो पास कर देगी यूरिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दिन में जो है ना वो डाइल्यूट हो जाता है यूरिन, तो वो उसका कलर कम होता जाता है। और पैरोक्सिज्म के जब कभी इन्फेक्शन हो, देखिए कोई इन्फेक्शन हुआ तो साइटोकाइन्स निकली, कंप्लीमेंट एक्टिवेट हुआ माइक्रोबियल इफेक्ट से। जब कंप्लीमेंट एक्टिव हुआ तो हमारे पास डिके एक्सेलेटिंग फैक्टर और CD59 तो है ही नहीं, ठीक है। तो उस वजह से इनकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसके थ्रू ये अपना एक्शन शो करते हैं वो एंकर नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें फिर ये है कि उनके पेशेंट्स को किसी भी फीवर के साथ, किसी भी इलनेस के साथ अगर प्रोलॉन्ग्ड किस्म का उनका जॉन्डिस चलता है जिसको हम स्टीरॉइड से ट्रीट करते हैं, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। T1 इनहिबिटर की डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद हेनरी एंजियोडीमा, और डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर CD59 जो कि जीपीआई एंकर पे अटैच नहीं हो रहे, तो वो उनकी सब जो कि फंक्शनल डेफिशिएंसी है, तो उस वजह से पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है। और कंप्लीमेंट फैक्टर H अगर उसकी डेफिशिएंसी हो तो इट इज एसोसिएटेड विद एटिपिकल फॉर्म ऑफ हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, जहां पे कंप्लीमेंट जो गेट्स डिपॉजिटेड ग्लोमेरुलर वेसल्स और वहां पे थ्रोम्बोसिस कराते हैं, प्लेटलेट थ्रोम्बाई बना देते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज जस्ट टू शो यू कि हमने कंप्लीमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम का इम्यूनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है, बट अगेन इट शुड बी, जैसे हमने साइटोकाइन स्टॉर्म में देखा कि एक्सेसिव एक्टिवेशन ऑफ साइटोकाइन्स लीड्स टू डेथ इन कोविड-19 पेशेंट्स। तो जो एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट जो है ना उसको भी कंट्रोल में रहना चाहिए, वरना अनचेक्ड होगा। अगर उसके इनहिबिटर्स नहीं होंगे तो आप खुद सोचो, फैटी एंजियोडीमा, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया और हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ये हमें डिफरेंट इनहिबिटर्स की डेफिशिएंसी से ये डिजीजेस देखने को मिलती है। मैम सॉरी, थर्ड वाली जो आपने डिजीज बताई है वो हाँ, कौन सी है? हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। अब इसको हम इंशाल्लाह फोर्थ ईयर में हेमेटोलॉजी जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम हेमोलिटिक एनीमिया को पढ़ेंगे। हेमोलिसिस मींस नॉर्मल रेड सेल का लाइफ स्पैन कितना है? एनीवन? 4 months. 120 days. वेरी गुड, 120 डेज। इसका मतलब है रेड सेल बना 120 डेज के बाद वो खुद ही से डिग्रेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। Sometimes the destruction of the spleen में जाके वो डिस्ट्रॉय होते हैं। Sometimes the destruction of the red cells is accelerated. It occurs at an increased rate. उसको हम कहते हैं hemolysis, ठीक है। तो hemolysis जो होती है ना, मतलब वो उसके कुछ मार्कर्स हैं, किसी आपको पता है हीमोग्लोबिन गिर गया, रेड काउंट इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, तो हेमोलिसिस होती है। यूरेमिक सिंड्रोम में ये क्यों यूरीमिया भी हो रहा है, यूरीमिया मींस कि किडनी फेलियर हो रहा है, उनका यूरिया क्रेटिनिन इंक्रीज हो रहा है। तो इन पेशेंट्स में क्या होता है कि कंप्लीमेंट फैक्टर H की डेफिशिएंसी की वजह से कंप्लीमेंट जो है ना इट गेट्स डिपॉजिटेड इन ग्लोमेरुलर वेसल्स, और वहां पे प्लेटलेट रिच थ्रोम्बाई, छोटे-छोटे थ्रोम्बाई बन जाते हैं। व्हेन ब्लड पासेस थ्रू दोस वेसल्स, तो रेड सेल जो है ना फिजिकली डैमेज, ठीक है। तो इसको माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम इज अ टाइप ऑफ माइक्रोएंजियोपैथिक, स्मॉल वेसल्स में रेड सेल्स टूटेंगे तो उनको हम कहते हैं माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिसिस, ठीक है। ये अभी अगर समझ नहीं आई है, डोंट वरी, ये अभी आपसे रिक्वायर्ड नहीं है, ये सिर्फ जस्ट टू गिव यू एन इनसाइट कि अगर कंप्लीमेंट गोज अनचेक, उसके इनहिबिटिव फैक्टर्स नहीं है, तो दैट इज एसोसिएटेड विद डिजीज प्रोसेस। बाकायदा मतलब इतने सवेर ये डिजीज है उनके साथ एसोसिएटेड है अनकंट्रोल्ड एक्टिवेशन ऑफ द कंप्लीमेंट सिस्टम। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम अच्छा, थैंक यू। अच्छा, ये जो है ना यहाँ पे समराइज कर दी गए जो साइटोकाइंस है ना, दे आर समराइज। कौन सा साइटोकाइन, ठीक है, और ये जो इसका कर्सर है ना ये खुद ही से गायब हो जाता है। कौन सा साइटोकाइन है, उसका प्रिंसिपल सोर्स क्या है और उसके एक्शंस क्या है। इस टेबल को आपकी बुक से है, ये टेबल कोई मुश्किल चीज नहीं है। इन चीजों को हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया और आपके लिए मुश्किल है, बस टेबल को अच्छी तरह जो है ना आप लोग याद कर लेना, ठीक है। सो अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड acute inflammation in quite a detail, ठीक है। Now coming on to the outcome, अच्छा हुआ क्या, acute inflammation शुरू हो गई, अब क्या?
The outcome of acute inflammation can be one of these three things. Number one, complete resolution, which means removal of cellular debris and microbes by macrophages and resorption of edema fluid by lymphatics, followed by regeneration of the damage. छोटा सा कोई infection हुआ, localized inflammation हुई, जो cellular debris बनी थी, that is removed, microbes जो आए थे, they were removed, they were killed by macrophages, and जो edema हुआ था, उसकी resorption हो गई lymphatics से, उनको लेके venous system में फिर डाल दिया, followed by regeneration of the damage. ये तो है कि complete resolution. Sometimes there's healing by connective tissue replacement, जिसको हम scarring और fibrosis कहते हैं. ये उन condition में होती है whenever there is substantial tissue destruction. ठीक है, जितना टिश्यू डिस्ट्रॉय होगा ऑब्वियसली वहां पे वो सारा टिश्यू जो है ना वो रीजनरेट नहीं हो पाएगा, so they'll be healing by fibrosis. When inflammatory injury involves tissues that are incapable of regeneration. अभी आप लोग जो नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट होगा कल से, वो पहले chronic inflammation और फिर healing and repair है. तो वहां पे भी आप देखेंगे कि we can divide the body cells into 3 types depending upon their regenerative potential, कि वो regenerate कर सकते हैं या नहीं. तो इसका वो परमानेंट सेल्स होते हैं, कुछ जैसे आपके न्यूरॉन्स वो रीजनरेट नहीं करेंगे, ठीक है. कुछ होते हैं स्टेबल सेल्स कि नॉर्मली वो जी नॉट फेज में रहते हैं अपने सेल साइकिल के, दे डोंट रेप्लिकेट रेगुलरली, बट व्हेनेवर दे नीड अराइजेस दे कैन रेप्लिकेट. उसमें आपका लिवर ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है. और इसके अलावा होते हैं लेबाइल सेल. पहले हैं परमानेंट जो बिल्कुल रीजनरेट नहीं करेंगे, दूसरे स्टेबल जो वैसे जी नॉट में बट दे हैव द एबिलिटी टू रीजन. तीसरे होते हैं लेबाइल सेल व्हिच कंटीन्यूअसली रेप्लिकेट, और उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे म्यूकोजा के सेल्स हैं, हमारी स्किन के सेल्स हैं, उनकी कंटिन्यूअस स्नफिंग होती रहती है. इसके अलावा हमारे हेमाटोपोइटिक सेल्स हैं, ब्लड फॉर्मिंग सेल्स जो कंटिन्यूअसली रेप्लिकेट करते हैं, ब्लड बन रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, मतलब वो एक रेगुलर प्रोसेस चल रहा है. When inflammatory injury involves tissues that are incapable of regeneration, वो regenerate कर ही नहीं सकेंगे, तो वहां पे तो scarring और fibrosis ही होती है. और when there is abundant fibrin exudation, तो उसमें भी जो है ना there will be healing by connective tissue replacement. And sometimes acute inflammation progresses to chronic inflammation. This occurs when with the persistence of the injurious agent, कि जो भी injurious agent था वो remove नहीं हो सकता by macrophages, but it cannot be killed by neutrophils. तो वो persist कर रहा है, तो फिर आपकी acute जो है वो chronic में चली जाएगी. Or there is some interference with the normal process of healing. So in conditions में there will be progression of acute inflammation to chronic inflammation. So these are the 3 possible outcomes: complete resolution, healing by connective tissue replacement, or progression to chronic inflammation. So this was something about acute inflammation. Monday से आपका next topic start हो जाएगा chronic inflammation, और फिर healing and repair आप लोग पढ़ेंगे. If you people have any questions regarding acute inflammation, please do ask. फातिमा, मरियम, खालिद, मिनाहिल, इतना अच्छा पढ़ा दिया मैंने कि आप लोगों के ज़हन में कोई सवाल ही नहीं. मिनाहिल वाकई यार. अच्छा 12 इसको पढ़ लो, आप लोग देख लो, और आज या मंडे को हम आपकी एक असाइनमेंट भी ऐड कर देंगे LMS के ऊपर, ठीक है ना, अपलोड कर देंगे. तो आई होप कि आप लोग ये सब समझ आ गया होगा. अगर नहीं है तो यू पीपल कैन आस्क मी एनी टाइम. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और लवली टू डिस्कस थिंग्स विद यू. थैंक यू.